Thank you so much. Uh, Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupinder Yadav ji, Honorable Minister of State, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Chaubey ji, Secretary, Minister of Environment, Forest, Climate Change, Shri R.P. Gupta sir, Special Secretary, and DG Forest, Shri Subhash Chandra ji, Additional Secretary, Shri Ravi Agarwal ji, ADG Wildlife, Shri Sumitra Das Gupta ji, ADG NTCA, Y. Yadav ji. Ladies and gentlemen, I, on behalf of Ministry of Environment and Forest, would like to extend our heartiest greetings and warm welcome to the launch of iconic week-long celebration of Azadi Ka Maha Utsav, which coincides with the Wildlife Week celebration and Gandhi Jayanti. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75th year of progressive India and glorious history of its people, culture and achievements. On the anniversary of the historic Gandhi March on 12th March 2021, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, flagged off the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, a 75-week-long celebration of our 75th anniversary of independence, culminating on 15th of August 2023. Ministry of Environment, Forest and Climate Change has also embarked on a journey since its inception, showcasing its rich tradition of culture of conservation, development, forest conservation, environment and biodiversity, and cultural diversity. This is being organized by the ministry along with the state government and local bodies under the guidance of our Honorable Minister Shri Bhupinder Yadav ji. The iconic week of the week-long celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav is launched today and will culminate on 10th of October 2021. The celebration is spread across the length and the breadth of the country and all sectors of forest, environment, biodiversity and climate change. The thematic alignment to this celebration is Idea at 75, to develop a robust objective and plans of Ministry of Environment, Forest and Climate Change with tangible targets in the future, and develop a comprehensive awareness school program in conjunction with the Department of School Education and Literacy. During the iconic week, the ministry shall focus mainly on the 5 broad themes. They are afforestation, where NAEB, National Afforestation and Eco Development Board, is initiating an afforestation drive at Amarkanthak in Madhya Pradesh. It aims at ecological restoration and conservation of the original site of Holy Narmada River, with constructive role of the ministry, the state government, state forest department and local stakeholders, which includes inauguration of afforestation and restoration drive in 5,000 hectares with state government of Madhya Pradesh, JFMC, CSO, local stakeholders. Launch of rejuvenation of Narmada River by PFRI and Madhya Pradesh Forest Department. Plantation activity will take over 18 hectares with native and medicinal plant species, and felicitation of the best forest conservators among JFMC and forest staff. The second theme is Wildlife Week celebration with special emphasis on the flagship species, that is tiger.
Tiger Rally on Wheel is being launched today, touching all the tiger reserve in the country. Then third theme is the wetlands. We'll be celebrating across the 75 wetlands in India, out of which 50 are Ramsar site and 25 are potential Ramsar sites. The main activity will include film screening, talk series on lakes, constitution of wetland mitras and ambassadors, and awareness generation among the stakeholders. The fourth thematic area is elimination of single-use plastic, which includes awareness program to avoid use of single-use plastic, campaign to reduce, eliminate, and use single-use plastic from the government offices. That will be a plastic-free week. Practicing segregation of dry and waste, especially the plastic waste. Awareness raising event on single-use plastic, webinars, virtual exhibition, and through social media campaign. And the fifth theme that we are having during the Iconic Week is conservation and development of our marine and coastal ecosystem across the 10 blue flag beaches with emphasis on awareness generation about marine pollution abatement, beach safety measures, blue flags, sustainable development goals, coastal biodiversity and its dependency, and environment education camps focus on 10 blue flag beaches, and beach cleaning drive with participation of the local citizen, event workshop chaired by the DM with beach viewers, local vendors and tourists, and flag hosting one day, one beach, and distribution of IEC information, education and communication material related to blue flag certification. The concerned divisions for these 5 thematic area are National Afforestation and Eco Development Board, Wetland Division, Hazardous Substance Management Division, HSMD, National Tiger Conservation Authority, NTCA, and Society of Integrated Coastal Management, that is SICOM. Apart from this division, all other divisions of the ministry are carrying out campaigns throughout the country, across the country, such as ozone cell of the ministries engaging with the industries and producer of the phasing out of ozone depleting substance and gases with global warming potential. All programs and activities are formulated to garner desired momentum, scale, visibility and impact and outreach. Awareness generation of students and youth as a part of development of public movement through Eco Club, National Green Corps, NSS, NCC, which are coordinated by Environment Education Division and National Museum of Natural History. Ministry has conducted till date 207 events in the phase first, that is from March to June, and in the ongoing second phase, starting from July, we have already conducted 94 events nationwide. We are progressing with the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It is gathering the momentum, the visibility and outreach to generate a mass movement for a healthy and sustainable environment for its citizens. In the end, I once again extend my heartiest thanks to all the participants and the dignitary for sparing their valuable time to join us on the launch of this iconic week of Azadi Ka Amrit Mahotsav and Wildlife Week. Thank you so much. Now I invite ADG Project Tiger and Member Secretary NTCA to deliver the welcome speech. धन्यवाद जिग्नेत। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज निश्चित रूप से एक बड़ा शुभ दिन है
क्योंकि एक और जहां हम आज़ादी का 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत कर रहे हैं, और आज के दिन हम गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। वाइल्ड लाइफ वीक में देश के सारे नेशनल पार्क, सैंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स में बड़ा एक वीक तक एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है, और विशेषकर इसमें बच्चों, स्कूली बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। टाइगर रैली के माध्यम से हम सारे टाइगर रिजर्व्स को भी जोड़ने का एक महाअभियान चालू अभी प्रगति पर है। मैं इस कार्यक्रम में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके नेतृत्व और दिशा निर्देश में हम ये कार्यक्रम अत्यंत प्राथमिकता के साथ और एक बड़े विशाल स्केल पर हम मना सके हैं। मैं मंचासीन हमारे सचिव श्री आरपी गुप्ता सर, हमारे डीजी एंड एसएस श्री सुभाष चंद्रा साहब, स्पेशल सेक्रेटरी रवि अग्रवाल साहब, एडीजी वाइल्ड लाइफ सौमित्र दास गुप्ता सर के साथ ही यहाँ पे सभा में उपस्थित जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सर नेट के माध्यम से हमारे 3 टाइगर रिजर्व जुड़े हुए हैं, और फ्लैग ऑफ के माध्यम से वो की रैली वहां पे प्रारंभ होगी। तो जो फील्ड से जुड़े माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जिला पंचायत और जिला परिषद के अध्यक्ष और टाइगर रिजर्व के अधिकारीगण, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज इस सभा में सिविल सोसाइटी के भी सदस्य और प्रतिनिधि उपस्थित हैं। मैं उनका और हमारे मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी की अनुमति हो तो सीधे हम नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र जाते हैं। फील्ड डायरेक्टर मिस्टर रामानुजम, कैन यू हियर मी? नवेगांव नागजीरा फील्ड डायरेक्टर मिस्टर रामानुजम। अनम्यूट करके नवेगांव नागजीरा। या तो ओवर टू यू रामानुजम। आप जो भी फेलिसिटेशन वगैरह करने के पश्चात आप माननीय केंद्रीय मंत्री से अनुरोध करेंगे कि हरा झंडा दिखाकर वो रैली को फ्लैग ऑफ करें। ओवर टू यू। जैसे सर ने हमें डायरेक्शन दिए हैं, वैसे जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनका पहले हम फेलिसिटेशन करेंगे। मैं रिटायर्ड डीएफओ श्री अशोक पुणे सर, इनको विनती करती हूँ कि वो मंच पर आए। सर 1982 में ज्वाइन हुए हैं सर्विस में, और उन्होंने 1999 से 2000 तक एनएनटीआर में आरएफओ, 2011 टू सर्व किया है, और वो 2015 में विभाग से रिटायर हो गए। मैं रामानुजम सर से विनती करूंगी कि उन्होंने शॉल और श्रीफल देके उनका सत्कार करेंगे। दूसरे यहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं वो है श्री एसएस काथोरे सर। उन्होंने भी विभाग में 1981 में ज्वाइन किया है। सितंबर 2012 से 2017 तक वो एनएनटीआर में डीएफओ स्तर पर कार्यरत थे, और 2017 में वो रिटायर हो गए हैं। मैं माननीय क्षेत्र संचालक सर से विनती करूंगी कि उन्होंने उनका सत्कार इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो हमारे वन शहीद है उनके कुटुंबीय हमारे साथ आज मौजूद है, उनका भी हम सत्कार, और उन्होंने जो आहुति दी है वन संरक्षण में,
उसका एक यहाँ पे रिकॉग्निशन होगा इस मंच पे। तो मैं विनती करती हूँ श्री सुनील खांडेकर जी, जो अभी कार्यरत है उनके पिताजी श्री राम खांडेकर राउंड ऑफिसर पटवारा, तो 1990 में ऑन ड्यूटी शहीद हुए थे। तो मैं सेक्टर संचालक से विनती करती हूँ कि राउंड ऑफिसर पटवारा। इसके साथ ही हमारे साथ लखनलाल भारद्वाज फॉरेस्टर, उनके वंदना लखनलाल भारद्वाज, मैं मैडम से विनती करती हूँ कि वे मंच पे आए और सत्कार स्वीकार करें। श्री लखनलाल भारद्वाज सालेकसा रेंज में मोबाइल स्क्वाड में कार्यरत थे और 2019 में ऑन ड्यूटी शहीद हुए। तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि जो उनकी पत्नी है वंदना लखनलाल भारद्वाज मैडम, उनको सत्कार। नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व की टीम की और यहाँ पे मौजूद अधिकारियों की तरफ से मैं वन शहीदों को आदरांजलि व्यक्त करती हूँ। इसके साथ हमारा NNDR की जो फेलिसिटेशन था सर, ऑनरेबल सर, वो खत्म हो गया सर। धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर सर टू जी, मैं माननीय मंत्री हरी झंडी के सेरेमनी के लिए सर आगे मैं दिल्ली को थैंक यू। मैं माननीय मंत्री जी से, दोनों मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर रैली को फ्लैग ऑफ करें। BRT Tiger Reserve Santosh Kumar, can you hear me? Please switch on your mic. Santosh Kumar. BRT Tiger Reserve Biligiri Ranganath Temple Sanctuary Tiger Reserve Chamarajnagar. Mr. Santosh Kumar, can you hear me? BRT Tiger Reserve Santosh Kumar, are you connected? Their audio also on. That's fine. One audio off ಮಾಡಿ. Santosh Kumar. BRT अपना वीडियो ऑन करिए, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। और अमृत ध्वनि सृजन मिश्रा के द्वारा परोसी जा रही है और तबलेगर है श्री सती रंजन द्विवेदी जी। सुने आप, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, ये पीर पराई जाने रे। और इसी के क्रम में गांधी जी के स्मरण के साथ माननीय अतिथियों के द्वारा उनकी प्रतिमा पर धूप, दीप, पुष्प और उनके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित होगी। प्रस्तुत है वैष्णव जन को तेरे कहिए, ये पीर पराई जाने रे। मैं अपने मंत्री जी गणों से रिक्वेस्ट करूंगा कि BRT की रैली जो चलने को तैयार है उसको हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ करने का कष्ट करें। BRT
ये बीआरटी टाइगर रिजर्व को मेन स्क्रीन में लाइए जरा। बीआरटी टाइगर रिजर्व को मेन स्क्रीन में कंट्रोल रूम। Suppose we can take that the tiger population has been completely restricted. Then what happens? You know that tiger is a carnivorous animal. The carnivorous animal has been completely excluded from the wild. The population of the carnivorous animals is very big. Then what happens? You won't get the direct oxygen. आप रैली फ्लैग ऑफ के लिए तैयार हो तो हाँ बताइए। तो एक समय की थोड़ी सी प्रतीक्षा है और सूचना यह है कि सांसद महोदयन भी हमारे बीच पधारेंगे और इस कार्यक्रम की एक सांस्कृतिक औपचारिकता की आपूर्ति भी हम समय सीमा के भीतर कर लेंगे, ऐसी अपेक्षा है। आजादी का नाम ले, स्मरण करें तो सहज ही एक चीज उठता है, सामने आता है, जिन्होंने उस लोकतंत्र की परंपरा में कुछ लोग आज भी उस संस्कृति के साथ समाज सेवा और जनप्रिय होने के लिए ही सही, लेकिन रास्ता यह अख्तियार किया या चयन किया है, वो लोग प्रणाम हैं जिन लोगों ने हम सबको सुख और चैन परोसने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। कुछ लोगों ने अस्त्र शस्त्र के बगैर भी देश को आजादी दिला दी। हम चैन की सांस ले संजय डुगली इसके लिए अपना भी म्यूट करिए। Thank you, Mr. S.P. Yadav ji, for initiating flag off the rally on wheel from the three tiger reserve. Now I request our Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri R.P. Gupta sir, to deliver his speech. भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री एस.पी. चौबे जी, मेरे सभी साथी अधिकारी, फील्ड से वर्चुअल मोड से जुड़े हुए सभी हमारे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क्स और दूसरे अधिकारीगण, मीडिया, स्वच्छता संस्थाएं और बाकी सभी गणमान्य लोग, आज एक बड़ा सुखद संयोग है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है और हम सब जानते हैं महात्मा गांधी स्वच्छता के एक बहुत बड़े प्रेरक रहे हैं, समर्थक रहे हैं और आग्रही रहे हैं। इसी के साथ साथ कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन 2 जो शहरी विस्तारों में होने वाला है उसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव जो हमारे देश की आजादी के 75वें साल में मनाया जा रहा है और उसका इस मंत्रालय का जो एक सप्ताह हमको दिया गया है और इसी सप्ताह में हमारा एक वाइल्ड लाइफ वीक भी पड़ता है। तो इन सबको मिला के एक स्वच्छता, आजादी का अमृत महोत्सव, हमारा वाइल्ड लाइफ वीक, ये इन सभी के समन्वय होके इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हम सब जानते हैं कि पहले हम सब प्रकृति के एक भाग थे और प्रकृति पर हमारा समान रूप से अधिकार था। उसमें मानवजन की कोई ऐसी प्राथमिकता नहीं थी कि ये सबसे आगे है या इन्हीं का पूरी पृथ्वी के पर अधिकार है। सभी का एक समान रूप से अधिकार था, वो हमारे वन्य प्राणी हो, हमारा
जो वनस्पतियां हैं, जैव विविधता है, वो सभी एक सामंजस्य से रहते थे। धीरे धीरे स्थितियां बदलती चली और हमने अपने जो प्रगति की, उस प्रगति के साथ साथ हमने इस धरती के अधिकांश भूभाग पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया। स्थिति ये आ गई कि जो इस प्रकृति की जो हमारे अलावा अन्य इस सृष्टि के अंग थे, वो वनस्पतियां हो, वन्य प्राणी हो या दूसरे भी कोई जो जीव है, वो धीरे धीरे कम होते चले गए। फिर हमने ऐसा निश्चय किया कि इनका भी अधिकार है, कुछ सीमित क्षेत्रों पर अधिकार। उस संदर्भ में प्रोटेक्टेड एरियाज का और इनके लिए संरक्षित वन, संरक्षित वन्य प्राणी राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, इनकी एक अवधारणा आई और उसके साथ साथ हमने उनको कुछ तो दिया। लेकिन इसके बाहर भी जो वातावरण है वो भी हमारी कार्यकलापों से बिगड़ता गया, अस्वच्छ होता चला गया। हमारी वायु हो, पानी हो, हमारी मिट्टी हो, इन सभी को हमारे कार्यकलापों से काफी बुरा प्रभाव पड़ा। अब इसको अगर हम एक स्वच्छता को के रूप में देखें तो हमें इन सभी को स्वच्छ करना है। आज भी जितने भी हमारे संरक्षित वन हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, वो वहां पर जाने से एक अनुभूति जो होती है, स्वच्छता की अनुभूति होती है, फ्रेश एयर की, फ्रेश वाटर की, एक फ्रेश वातावरण की। जो हमने यहाँ पर खोया हुआ है वो वहां पर हमको स्वाभाविक रूप से वहां पर मिलता है। तो उसी स्वच्छता को हमको अपने यहाँ वापस लाना, और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है जन जागृति की, अवेयरनेस हमारे वातावरण के बारे में, हमारे वन्य प्राणियों के बारे में, हमारे वनों के बारे में, हमारी नदियों के बारे में, हमारी झीलों के बारे में, हमारी धरती के बारे में और हमारी हवा के बारे में। इन सभी के बारे में इनको स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है कि हम इनका महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, और हमारा अपना जीवन खुद इनके ही जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इस चीज को हम अच्छी तरह से पहचानें। उसी संदर्भ में ये सप्ताह हमारे लिए और सभी के लिए बहुत महत्व रखता है। इस सप्ताह में जैसा जिग्मेट ने बताया, हमने जितने भी कार्यक्रम शुरू किए हैं उसमें से मुख्य जो अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल को, उसकी जो पहली पहचान थी वन और स्वच्छ क्षेत्र, उसी के पुराने रूप में स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो टाइगर रैली हुई है, ये सिर्फ टाइगर रैली ही नहीं है। इसके माध्यम से लोगों को हमारे वन्य प्राणियों के बारे में, हमारे प्राकृतिक क्षेत्रों के बारे में एक अच्छी जानकारी मिले, ये इसका मूल उद्देश्य है।
टाइगर जैसा हम सबको पता है सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। टाइगर एक पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है। टाइगर की अगर संख्या हमारे यहाँ स्वस्थ है, हेल्दी टाइगर नंबर्स है, तो उन क्षेत्रों में पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम है वहाँ का फ्लोरा फोना और जो पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो हमारा सुरक्षित है और अच्छी तरह से फल फूल रहा है, ये हमें मालूम चलता है। तो ये भी हमारे लिए सभी के लिए ये एक अच्छी शिक्षा का एक अवसर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। प्लास्टिक के बारे में भी इस सप्ताह में कार्यक्रम होने वाले हैं। ये पहले एक बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी वस्तु के रूप में आया, फिर हमें इसके दुष्परिणामों का पता चला। अब हम धीरे धीरे इसको हम किस तरह से नियंत्रित करें, अपने मिट्टी को, अपने हम जल को, अपने वायु को इससे प्रदूषित ना होने दें, इसके कार्यक्रम और इसके नियम हमने बनाए हैं। और ये सभी को नियमों से ज्यादा जरूरी है कि लोग इसके बारे में विज्ञ हों और वो इसको जहां तक संभव हो उसको अपने वैकल्पिक इसके जो विकल्प हैं उन सब का प्रयोग करें। हमारी झीलें, लेक्स, वेटलैंड्स ये जितनी ज्यादा फैली हुई है उतनी ही ज्यादा ये हम सभी के जीवन को प्रभावित करती हैं। वहाँ के पूरे बायोडाइवर्सिटी को, लोगों की लाइवलीहुड इस पर निर्भर होती है, वहाँ का फ्लोरा फोना इस पर निर्भर होता है। इसलिए ये भी स्वस्थ रहे, इसीलिए इनके बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है। आज हम जो कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, इको टूरिज्म गाइडलाइंस, नगर वन गाइडलाइंस, ये सब इस जागरूकता में अपना योगदान देंगी और लोगों को प्रकृति के प्रति जो ज्ञान होना चाहिए, इसकी जरूरत के बारे में और हमारे अपने जीवन में इनका महत्व, उसके बारे में एक अच्छी जानकारी मिलेगी और इसका हम सबको फायदा मिलेगा। हम सभी सबको इस शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और कार्यक्रम की सफलता की और आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ। BRT Tiger Reserve, can you connect? BRT BRT operator for us to make